First question. An electron written from excited state to ground state in hydrogen atom and emits a photon of wavelength lambda. The principal quantum number of excited state is given by. अंडर रूट n स्क्वायर माइनस वही ना 1 by lambda is वाला तो फॉर्मूला 1 by lambda Rydberg's का r रिलेशन आपको यूज करना पड़ेगा. So I'll write the Yes. Rydberg's relation, which is wave 1 by number lambda 1 by lambda, which is also called mu bar, that is r equal to r into 1 minus 1 by z square into 1 Z1. by n1 1 square minus minus 1 by n2 n2 square. square. n2 square. Now in the question, from excited Z1 state to and ground N1. state, so n1 जो है वो 1 होगा and n2 जो है वो अपना Z- excited state होगा, which is to be found. यही क्वांटम नंबर है. So वेवलेंथ को लैम्बडा ही रखा है, so 1 by lambda. r के टर्म्स में आइडेंटिफाई करना है. हाइड्रोजन एटम है तो 1 स्क्वायर. द z इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, बिकॉज अगर कोई और स्पीशीज हुआ जैसे He+, Li+2, देन Yes. we need to consider the atomic number as well. ठीक है. उसके बाद 1 by 1 minus 1 by n2 square. n square. So 1 by lambda r और ये हो जाएगा minus 1 minus 1 by equal to minus 1 by n2 square. So finally 1 by n2 square would be equal to 1 minus 1 by lambda है r, C होगा which C is lambda r minus 1 Maybe upon D. lambda r. अब इसको रेसिप्रोकेट भी करना है आपको. Don't forget that. right So n2 will be equal to under root और रेसिप्रोकेट किया, so it will be equal to lambda r upon lambda r minus 1 lambda r minus 1. is option C. Yes, sir. Okay. So first ionization energy is lowest for. Obviously answer tempting है lead, लेकिन the correct answer is tin. 10 Now just look at these values. और किसी में नहीं है क्या एक्सेप्शन ऐसा सर मैग्नीशियम वाले ग्रुप में था ना बाल एक गंगाधर मिनट कमिंग. अरे यार ये कौन आ रहा है बार बार यार. शिट. ग्रुप 13 मीटिंग उसमें क्या था जन्म में भूल गया यार. अभी listen. बोरॉन So फिर थैलियम फिर एल्युमिनियम फिर गैलियम फिर जनम, एल्युमिनियम mute your mic. Sorry. Mute your mic. So first ionization energy की values you can see for the group 14. So highest of course as expected carbon है, followed by silicon, then germanium and then lead, उसके बाद tin है. So lowest ionization enthalpy group 14 का is tin. तो आंसर तो यहाँ पर tin होगा. ठीक है. अब और एक एक्सेप्शन बोरॉन फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट है जो बहुत बार आ भी चुका है. यस सर. बोरॉन थैलियम फिर गैलियम एल्युमिनियम फिर इंडियम एल्यूमिनियम और गैलियम वाला ना. First ionization enthalpy is Nickel highest gallium. in group 13 for boron. बोरॉन के बाद थैलियम थैलियम, उसके बाद गैलियम गैलियम, एल्युमिनियम एल्युमिनियम, फिर इंडियम इंडियम. लास्ट में इंडियम आता है. Indium. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर. रट लो इसको because this is many times asked also. Boron, the second in the order is thallium, which is actually the last one. ठीक है. तो बोरॉन के बाद थैलियम BTL, उसके बाद गाल यानी गैलियम एंड एल्युमिनियम और लास्ट में इन यानी इंडियम. Okay, so just Reason make is a way shielding to effect learn only, this. no? It is based on shielding, poor shielding effect. So answer to this would be tin. So दो ionization enthalpy के exceptions for 13, 14 very important to be remembered. Sir. Say. Next. Hello. Amongst the species given, the non-planar species are. Hybridization. तो सबके hybridization को सोचेंगे. Starting with BCl3. प्लेनर है It is sp2 and planar. Carbonate. Carbonate is C. Double bond O. ये भी प्लेनर है sp2 ही है O sp2 negative. ही है आप s पर अप्लाई करोगे तो ये सुपर सिंगल बॉन्ड कंसिडर होगा
So there are 3 हाँ. BPs and no LP. मतलब this is also sp2 and planar. Now nitrate. How would you draw nitrate? मैंने last time बताया था. Listen, if you want to draw any negative ion या anions का structure, it's better to HNO3. acid. draw the neutral Acid. molecule of that. So HNO3 सोचो. अभी एक ऑक्सी एसिड है, तो ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम के साथ H will always be bonded as OH. OH. उसके बाद the oxygen will be joined as double bond and then coordinated with O. Now just release this H plus, so you will get nitrate ion. ठीक है? अच्छा. अब नाइट्रेट का स्ट्रक्चर से N देखो, sp2. तो there are 3 BPs and again no LPs. मतलब this will also have the sp2 planar structure. ClO3 के लिए think about HClO3. Mute your mic please. Mute your mic please. सबका माइक म्यूट होना चाहिए. आदित्य माइक म्यूट करो. ओके. So HClO3 is perchloric acid. कोई भी ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर के लिए फंडा रिमेन्स द सेम. सेंट्रल एटम bonded to OH. And now the 2 oxygen atoms would be joined as double bond O, double bond O. And chlorine के लिए 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 गए, तो बचा एक लोन पेयर. अब वापस सेंट्रल एटम को देखो, there are 3 BPs and 1 LP. 3 BP 1 LP मतलब क्या हो जाएगा? sp3. ये नॉन प्लेनार नहीं है. नॉन प्लेनार. हाँ, नॉन प्लेनार है. स्पीशीज व्हिच इज नॉन प्लेनार. ठीक है. SO3 2 माइनस के लिए think about H2SO3 which is रस acid. रस एसिड. अगेन सेंट्रल एटम S है, आजू बाजू OH एंड देन एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और लोन पेयर. अब सेंट्रल एटम वापस देखो, 3 BPs 1 LP. दिस इज आल्सो sp3 मतलब नॉन प्लेनार. फिर BO3 नेगेटिव 2. एक्चुअली ये BO3 3 माइनस ही होना चाहिए. H3BO3. ठीक है. So think about H3BO3 which is famously orthoboric acid. Orthoboric acid में B is bonded to 3 OH and it is sp2 planar. तो ये planar species है. ठीक है. उसके बाद AsO3 3 negative मतलब think about arsenic acid. H3 नस है कि आर्सेनिक है? NO3 माइनस जैसा ही होगा ना? नहीं, ये नस है. H3SO4 आर्सेनिक को. जन्म, दिस इज नॉट सिमिलर टू NO3. अच्छा 3 माइनस है. सॉरी 3 माइनस है. नहीं देखा नहीं मैंने. ठीक है, मैं सुनो अभी. अरे मेरे को लगा चार्ज जो है वो सेकंड पीरियड है, तो उसका जो स्पीशीज बनेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स. If you want to relate this, you can relate this with phosphorus acid. H3BO3 है ना? तो अब क्या होगा स्ट्रक्चर में? AS के साथ there will be 3 OH groups, है ना? और आर्सेनिक सेंट्रल एटम है और ग्रुप 15 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होगा. So 3 of them will be satisfied with OH and 2 will remain as a lone pair. मतलब वापस अगर सोचोगे तो 3 BPs 1 LP हो गया. मतलब ये sp3 और नॉन प्लेनार होगा. ये थर्ड स्पीशीज अपना नॉन प्लेनार. अब SO3 is simply S double bond O. sp2 ही है सीधा. Double bond O. This is famously sp2 and planar structure. ठीक है. So now the non-planar species are, हाँ. इसमें वो क्या था? इसमें 1 p pi and 2 d pi. 2 d pi बॉन्ड में था. वो SO2 में था. SO3 का स्ट्रक्चर सिलेबस के लिए नहीं था. इसमें भी तो होगा. हाँ, इसमें होगा, लेकिन आप जो आई थिंक रेफर कर रहे हो वो इसको रेफर कर रहे हो, सल्फर डाइऑक्साइड. हाँ, उसमें तो है 1 p pi 1 d pi. तो सिमिलर यहाँ पर भी होगा p pi और d pi का. हाँ, इसमें 2 d pi p pi होंगे शायद. हाँ, शायद नहीं. So for CO3 2 minus we have to relate it to H2CO3. Yes, अगर मैं यहाँ H plus लगा दूँ तो मैंने जो बनाया वो कार्बोनिक एसिड ही हो गया. अच्छा, ओके. This is H2CO3 का स्ट्रक्चर. ठीक है. So now the species which are non-planar are SO3 2 minus, ClO3 minus, AsO3 3 minus होना चाहिए. The answer is option D. Yeah.
So we have Yes. related many of the species with the Vesper theory. Hybridization भी यहाँ पे discuss हुआ है. Next, the oxidation states of sulfur atom in Marshall and Carros acid are respectively. Marshall +5 +6 दोनों +6 दोनों ही +6 होता है दोनों में because +6 max है। oxidation state of sulfur is कितना? +6 +6 ही होता है. तो +6 अगर आप मार्शल्स एसिड को देखते हो Peroxy. H2SO8 थियोरेटिकली कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको 10 मिलता है यहाँ पर, जो कि इनकरेक्ट आंसर है. हाँ क्योंकि OO लिंकेज हाँ. -1 तो होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा था? मार्शल एसिड इज peroxy disulfuric acid, SO so it will have a sus linkage. SOOS लिंकेज सूस लिंक sus लिंकेज sus Sus linkage. linkage. उसके बाद आजू बाजू OH and then the 4 oxygen will be joined as double bond O, double bond O, double bond O, double bond O. So now by calculating the oxidation number, these are to be considered as -1, all other oxygen -2. So जब कैलकुलेट करोगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा. Similarly, So Carros Carros acid is is peroxy H2SO4. monosulfuric acid. तो इसमें क्या होगा? S के साथ एक साइड OH होगा और एक साइड और एक साइड OOH OH होगा, peroxy आएगा और ऊपर नीचे डबल बॉन्ड O. वापस इन दोनों ऑक्सीजन को -1 लेकर आप कैलकुलेट करोगे तो सल्फर +6 ही आएगा. ओके सर. So Carros and Marshalls both have the oxidation state of sulfur as +6. +6 So ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Next, which of the following compound does not decompose on heating? Na2CO3 Na2CO3 Perfect. If we talk about carbonates में H2O, इस ब्लॉक की decompose फैमिली में सिर्फ लीथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज होता है. एंड क्या देता है? ऑक्साइड और CO2. चार ही ऐसे कार्बोनेट्स हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं. And they are famously NaKRbCs. NaKRbCs के कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते हैं. So the answer is clearly option C. अच्छा, what will be the bicarbonate का decomposition product? Na2CO3 Na2CO3. Bicarbonates on decomposition gives carbonate plus CO2 and H2O. H2O. Similarly, जैसा आपका लिथियम का कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है, वैसे ही पूरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का डिकम्पोजिशन है. याद रखो, सुनो क्या बोला मैंने. जैसा लिथियम का बिहेवियर है, सेम बिहेवियर अल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट्स भी दिखाते हैं. मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ इसका. मैंने क्या बोला? अगर हम नाइट्रेट के बारे में बात करते हैं, नाइट्रेट LiNO3 लिथियम का नाइट्रेट क्या देता है? Li2O plus NO2O2 दोनों देता है. हाँ, दोनों देता है. NO2O2 It gives you oxide plus 2 gases are released. NO2 and O2, NO2 reddish and brown A colorless oxygen and reddish brown nitrogen. But सोडियम या बाकी नाइट्रेट्स की अगर बात करें, बनता है. NaNO2 और O2 देता है. तो नाइट्राइट और ऑक्सीजन एक ही गैस रिलीज होता है. इसके ऊपर ये बहुत बोला था क्वेश्चंस आ आपने. चुके हैं. हाँ, अपना बोला. ठीक है. और अगर मैं M+2 वाले नाइट्रेट्स की बात करूं, which is same as LiNO3 twice, इसका डिकम्पोजिशन याद रखने के लिए लिथियम याद रखो. मतलब ये क्या देगा? एक तो ऑक्साइड देगा MO वाला, प्लस 2 गैसेस यहाँ रिलीज होंगे NO2 और O2. This is how you remember the decomposition of salts. Is that clear? Yes. Lithium nitrate gives you 2 gases on heating. Sodium nitrate gives you only 1 gas. And alkaline earth metal के nitrates in general again releases 2 gases, and the behavior is similar to lithium nitrate. Simple concept. ठीक है. और इधर बाइकार्बोनेट्स का हीटिंग तो हमेशा कार्बोनेट देगा प्लस H2O एंड CO2. CO2. ठीक है. ये नाइट्रेट वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट, फाइंड द PO bonds present in P4O6. POP लिंकेज बॉन्ड होता है. इसमें. तो इट इज हैविंग अ साइक्लिक स्ट्रक्चर. हाँ, आंसर 12 है.
Yes, sir. 12. देखो 12 स्ट्रक्चर में वापस बताता हूँ मैंने क्या किया। करने का 4 फास्फोरस को स्क्वायर टाइट में शेप में बनाना। रखने का उसके बाद सबके बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन यानी पॉप लिंकेजेस होता है यहाँ पर और अंदर ऑपोजिट भी में भी एक है अंदर भी पॉप लिंकेज होता है तो ये opposite. एक और ये एक और ये P4O6 का होता है स्ट्रक्चर डाइफॉस्फोरस हेक्सॉक्साइड तो जब वो बीच वाला जो एक मतलब सेंटर वाला ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो ओपन केज बनता है, ऐसा कुछ तो होता है ना? नहीं 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 ये वो तो व्हाइट फॉस्फोरस का बोल रहा है वो तू, P4 व्हाइट का है फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस का बोल रहा है। ओके ओके, हाँ हाँ। हाँ समझा, हाँ। पॉली तो अभी बॉन्ड्स कितने पीओ बॉन्ड्स पूछा है पॉप लिंकेजेस नहीं पूछे हैं अभी इसमें 12 अगर पॉप लिंकेजेस पूछा होता तो कितने हैं पॉप लिंकेजेस 6 6 6 पीओ बॉन्ड्स बोला तो कितने हैं 12 12 12 because this will be 1 2 वैसे 3 4 5 6 7 8 अंदर 9 10 11 12 the answer is option A clear अच्छा P4O10 में क्या फर्क है अगर ये P4O10 हो जाए वो डबल बॉन्ड हो, हर पी पे डबल बॉन्ड हो भी होता हर है, P पे डबल बॉन्ड O कर देना है डबल बॉन्ड हो ये बताया था स्ट्रक्चर। हाँ है भाई, ये तो कर लेना। ग्रुप 15 में हमने किया हुआ है हाँ। ठीक है और कुछ हाँ खास पर बात ये बताता हूँ जनरली पेपर्स में आया है। P4O6 is equivalent to it's a dimer of O3 O3 and P2O3 is anhydride of H कैसे H. करेंगे आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए ना? वेरी गुड P2O3 में +3 होता है मतलब दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ द ऑक्सी एसिड इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3 वाला होता है H3PO3 PO3 तो H3PO3 को डिहाइड्रेट करोगे P2O3 मिलता है वैसे ही P4O10 is equivalent to H3PO4 H3PO4 is का a है dehydrating agent है ना and this is anhydride of H3PO4 H3PO4 which is phosphoric Rick acid रिक एसिड in the same oxidation state of +5 ठीक है तो ये चीजें ध्यान रखनी है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन when hydrogen peroxide is added to acidified potassium dichromate a blue color is produced due to formation of CRO5 बटरफ्लाई very good नहीं, CRO5 CRO5 ब्लू बटरफ्लाई, हाँ बटरफ्लाई blue butterfly हाँ हाँ बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर है और कलर ब्लू है ठीक है ये रिएक्शन है K2Cr2O7 in acidic medium meaning H2SO4 के presence में when added with hydrogen peroxide it produces chromium का O5 CrO5 compound plus K2SO4 and plus H2O ठीक है अब CrO5 की कुछ खास बातें बताई थी पहला तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है Cr +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वापस O and double bond हो बीच में so 4 oxygen will have -1 -1 oxidation state इसका -2 तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है जो कि उसका हाईएस्ट भी है उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता ना और थियोरेटिकली सोचोगे तो x -10 इक्वल टू 0 x इक्वल टू +10 वो गलत है हर एलिमेंट का मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर वो नहीं जा सकता a concept to remember and this is famously a blue colored compound ठीक है next if BOD of a river is high it means that the river is D polluted by organic chemicals polluted by organic polluted. chemicals which are Polluted by decomposed by bacteria वो missing है यहाँ पर decomposed by ऑक्सीजन कुछ तो है ना bacteria अब BOD का concept क्या है full form बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, biochemical oxygen demand बायोकेमिकल, हाँ biochemical oxygen demand it is defined as the amount of oxygen required by bacteria to decompose organic matter मटेरियल
तो BOD की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ऑक्सीजन would be required for decomposing the organic matter by bacteria. इसका मतलब रिवर में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो काफी ज्यादा प्रोपोर्शन में है. The high value of BOD refers to more polluted. ठीक है, इसलिए BOD की वैल्यू जितनी कम होगी उतना पोल्यूशन कम रहेगा. ये भी पूछा जाता है. प्योर वाटर के लिए BOD का वैल्यू शुड बी लेस एंड जनरली उसका रेंज होता है 5 to 10 ppm. BOD का रेंज क्या होना चाहिए? 5 से 10 ppm तक हम क्लीन वाटर बोल सकते हैं. और उससे एक्सीड होगा तो इम्प्योर हो जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनस्टेबल इनॉल फॉर्म? अरे भूल गया, याद नहीं. इनॉल क्या था? कीटो इनॉल. डी वाला स्टेबल है, बी वाला भी बहुत स्टेबल है. डी, हाँ सर वो तो है. आई थिंक ए सर. ओके, इनॉल को स्टेबल होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? बीटा डाइकीटोन. हाँ. But what were the factors which stabilized? मिथाइलिन ब्लू. हाँ. वो मिथाइलिन ब्लू तो इंडिकेटर है. CH2 अरे इनॉल के स्टेबल, अभी ये जो है ये बीटा डाइकीटोन है ना. हाँ. एंड बीटा डाइकीटोन अल्फा बहुत ज्यादा स्टेबल था ड्यू टू दो रीजन था, रेजोनेंस एंड इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनता है भाई. हाँ. इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू रेजोनेंस एंड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो ये वाला तो काफी स्टेबल इनॉल देता है, वो हमने पढ़ा है. ठीक है, सेकेंड वाला अगर देखोगे बी तो फिनॉल ही है. इसमें 2 H होते हैं. अब इनॉल में होता क्या है, जो H है वो ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट हो जाता है. ये तो डबल बॉन्ड फिनॉल ही है ये तो यहाँ पर फाइनली ये क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा. स्टेबल है. सो इसका जो इनॉल कंटेंट है वो 100% होता है हाँ, इस कंपाउंड का. इफ यू रिमेम्बर इसका नाम है साइक्लो हेक्सा डाई 2,4 डाइइनोन 2,4 डाइइनऑन है ना. और ये इसका इनॉल 100% होता है बिकॉज ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो ऑब्वियसली स्टेबल इनॉल देते ही है. अगर आप फर्स्ट को सोचोगे तो फर्स्ट में इनॉलाइजेशन होने के बाद शॉर्टकट क्या है? जहां डबल बॉन्ड है वहां पे OH लगा दो और उसके बाजू वाले कार्बन का डबल बॉन्ड हो जाएगा. तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन हो गया. साइक्लोब्यूटाडाइन अरोमेटिक नहीं होता है. हाँ. इट इज एलिफेटिक. एंटी अरोमेटिक. हकलजुल 4n इलेक्ट्रॉन्स. 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पर. चल एक बार हकलजुल कौन है? 2n+2 और 2n+2 हकलजुल में 4n+2 में एरोमेटिक, 4n में एंटी क्या होना चाहिए? साइक्लिक. दूसरा प्लेनार होना चाहिए, मतलब सारे कार्बन्स sp2 होने चाहिए. एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 को सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है, 4n+2 में क्या क्या आता है? अगर n को 0 रखोगे तो 2, फिर 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन. ओके सर. लेकिन अगर ये 4n को सेटिस्फाई करता है यानी 4, 8, 12 एंड सो ऑन, तो वो एंटी एरोमेटिक, मतलब दिखने में एरोमेटिक लेकिन स्टेबल नहीं है. और तीसरा होता है नॉन एरोमेटिक. ठीक है, वो एंटी से ज्यादा स्टेबल होता है. हाँ, एंटी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं. अच्छा, अगर C को देखोगे तो वापस शॉर्टकट में अप्लाई करूं. ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O पे OH बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड. सिमिलरली यहाँ पर OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड. नॉन एरोमेटिक है. ये नॉन एरोमेटिक है तो एंटी से तो ज्यादा स्टेबल है ना. हाँ वही. तो आंसर इज A. अनस्टेबल इनॉल A का बनेगा बिकॉज द कंपाउंड फॉर्म्ड, द इनॉल फॉर्म्ड इज एंटी एरोमेटिक.
अनस्टेबल। ठीक है, सो हक्केल रूल में n कैसे ले रहे थे हम लोग? जितने डबल n बॉन्ड is के like इलेक्ट्रॉन्स any है integer जितना value which can start from 0 in case of 4n plus 2। ओके, मतलब वो देखो बॉन्ड जो मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये अपना साइक्लो पेंटेन है और ये साइक्लो पेंटाडाइन है। यहाँ पे प्लस रखता हूँ, यहाँ पे माइनस, और इसको न्यूट्रल कंसिडर करता हूँ। अब पहले वाले में पाई ऑल्टरनेट प्लस, तो ये Anti। कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइज्ड है ये 4 हो जाएंगे। तो एंटी हो गया। इस केस में ये लोन पेयर कॉन्जुगेट करेगा तो टोटल ये इलेक्ट्रॉन्स जो ये डीलोकलाइज्ड है वो 6 हो एरोमेटिक, जाएंगे। बाजू वाला नॉन ठीक है, एरोमेटिक। और यहाँ पे ये Non-aromatic। कार्बन sp3 है तो ये नॉन अरोमेटिक है। ओके तो ये नॉन अरोमेटिक है, ये अरोमेटिक अरोमेटिक है, और ये एंटी। एंटी अरोमेटिक है। Anti बेस्ट aromatic। आंसर जितने डबल बॉन्ड है उतना एग्जांपल आना चाहिए समझने ना के लिए साइक्लोपेंटाडाइन प्लस ले लो, माइनस ले लो और न्यूट्रल ले लो, तो तीनों Okay। एग्जांपल्स क्लियर हो जाते हैं। सर एन का वैल्यू वो आना डाल के आना चाहिए आंसर जितना इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड दिख हाँ रहा है मतलब उतना वही ना। ना, 4n मतलब क्या, वो तो 4 8 चार। 12, 4n N प्लस को 2 1 मतलब 2 देखेंगे। 6 10 14 ऐसा। तो ये 4n प्लस 2 को सेटिस्फाई कर रहा है ना, और ये 4n को है सेटिस्फाई भाई कर रहा मतलब है। ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट। यस ओके 35 काफी अच्छा क्वेश्चन है मैकेनिज्म के रिलेटेड। आपको दिया गया है एक साइक्लोपेंटेन अटैच्ड विथ हेक्साडाइनोन और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया है। ठीक है, अच्छा ये स्पाइरो कंपाउंड है बिकॉज ओनली वन कार्बन इज कॉमन, यस। दिस इज अ स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, ऑप्शंस में देखोगे तो पहला ऑप्शन सिंपली OH लग गया है, सेकंड में उन दोनों के बीच में बॉन्ड दिखाया है, थर्ड में रिंग एक्सपांशन का केस हो रहा है, और फोर्थ में भी रिंग एक्सपांशन है लेकिन खाली OH की पोजीशन डिफर कर रही है। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर? जस्ट सी डी होगा। हाँ, सी या तो डी, सी या तो डी। हाँ मतलब इसमें आपको रिंग एक्सपांशन सोचना है। हाँ, ठीक है, क्योंकि 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल होता है, टेबल होता है। बियर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो अगर मैकेनिज्म सोचेंगे तो सबसे पहले ये कीटोनिक कंपाउंड एसिडिक मीडियम में एच प्रोटोनेट एच करेगा। एच खुलेगा। हाँ, OH प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये OH प्लस बन जाएगा। ठीक है, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, सॉरी Yes। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। हाँ, ठीक है, फिर पाई ऑल्टरनेट प्लस में अगर इसको हम शिफ्ट करें तो फाइनली ये वाला कार्बन विल बिकम हाँ, डेफिशिएंट। उधर पूरा कॉन्जुगेशन है ना, उधर देखो बटन मिलेगा। पाई ऑल्टरनेट पाई और लोन पेयर के साथ है। ठीक है, तो वो सेंटर वाला कार्बोकटन बन जाएगा एक और मिनट, फिर एक मिनट। ज्वाइन हो जाएगा। स्टेप वाइज ही बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये OH बनेगा विथ वन लोन पेयर एंड अ पॉजिटिव चार्ज। और ठीक है, और ये सब ऐसे ही। अब मैंने क्या बोला, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो दिस विल बिकम सिंगल बॉन्ड OH एंड प्लस विल कम हियर, then this plus will delocalize to this because of the shifting of this electron. So finally जो intermediate मिलेगा that will be ये 5 membered ring, उसके बाद ये 6 membered ring, ये single bond OH, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा विद अ पॉजिटिव चार्ज हियर। ठीक है, अब 5 से 6 मेंबर का रिंग एक्सपांशन कैसे होता है, तो इधर ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सकता है एंड दिस रिंग कैन ओपन अप एंड जॉइन टू दिस पर्टिकुलर कार्बोकटाइन का कार्बन टू एक्सपांड इनटू 6 मेंबर्ड रिंग। यस। अब ऐसे केस में ऑलवेज D होगा, D। नंबरिंग सो दैट आपको बराबर स्ट्रक्चर समझ में आए। तो लेट्स से मैं इस 5 मेंबर्ड रिंग को नंबर कर रहा हूँ एज 1 2 3 4 5 और 6th carbon in consideration is the carbocation. Look at the numbers properly.
ठीक है. सो अब सबसे पहले वो राइट वाला रिंग ड्रॉ कर लो जो एज इट इज होगा. यहाँ डबल बॉन्ड और OH. ठीक है. अब यहाँ 1 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करना है. तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. 5 तक क्लियर है? 1 2 3 4 5. नाउ दिस 5 इज जॉइनिंग टू 6. और ये 6 कार्बन है ना. ठीक है. तो 5 और 6 के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा. ठीक है. और कौन सा बॉन्ड टूटा है? 5 और 1 के बीच में. अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा उसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? 5 और 1 के बीच में टूटा. इन दोनों में कौन सेटिस्फाई हुआ और कौन रह गया? 5 सेटिस्फाई हो गया. ठीक है, क्योंकि 5 ने बॉन्ड बना दिया ना 6 के बॉन्ड साथ. बना दिया. तो 5 सेटिस्फाई हुआ. गरीब कौन हुआ? 1. 1. मतलब द पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन दिस कार्बन. ये है पॉजिटिव चार्ज. इज दिस क्लियर? तो रिंग एक्सपांशन का एक सिंपल कॉन्सेप्ट, कौन सा बॉन्ड टूटा और कौन सा बॉन्ड जुड़ा. मतलब 1 5 टूटा, 5 6 जुड़ा. 5 में 5 सेटिस्फाई हो गया, 1 रह गया. तो पॉजिटिव चार्ज किधर माइग्रेट करना है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली. ठीक है. यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन था, तो लास्ट स्टेप में यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा. ठीक है. तो यहाँ का लेट्स से ये एज जो है डीप्रोटोनेट हुआ. तो डीप्रोटोनेट होगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो ये बन जाएगा आपका फिनोलिक रिंग स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. और इसके साथ अटैच्ड एक और रिंग ऐसा आ जाएगा. क्लियर? तो आपका 2 रिंग में OH की पोजीशन कहाँ है? अगर OH के हिसाब से गिने तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. मतलब थर्ड कार्बन पे दूसरा रिंग होना चाहिए. तो फिनॉल के थर्ड कार्बन पे. तो आंसर डी है. राइट? क्योंकि ये 1 ले लो, ये 2 ले लो और थर्ड कार्बन पे ये पूरा रिंग है. द आंसर इज डी. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में जहाँ 5 मेंबर्ड रिंग किसी और रिंग से अटैच्ड हो, ऑलवेज थिंक अबाउट रिंग एक्सपांशन. ठीक है. नेक्स्ट, in a solid cation, P occupy 1/8 of the TV and cation Q occupy 1/4 of OV. And oxide ions are arranged in CCP यानी cubic closed packed structure. The formula of the compound क्या है? O 4 हो जाएगा, Q 1 हो जाएगा और P हो जाएगा 1/8 of P भी 1 हो जाएगा. PQO4 ही होगा. सोच सी है. आंसर PQO4 है. डी ऑप्शन गायब है. ठीक है. तो ऑक्साइड आयंस जो है वो CCP में है और CCP मतलब द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस वुड बी 4 पर यूनिट सेल. ठीक है. अब P बोला है 1/8 ऑफ द TV. 1/8 ऑफ द TV. अब CCP अगर 4 ऑक्साइड आयंस के साथ है तो TV उसका डबल होता है. TV are always double and OV are same. और Q जो है 1/4 ऑफ OV है तो OV 4 ही होंगे. तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. So 1 1 and 4. That's why the correct answer is PQO4. Here. So अगर CCP के बजाय कोई और स्ट्रक्चर होता तो SCC वगैरह होता तो? FCC और CCP एक ही है. सेम ही है. HCP अलग होगा क्योंकि HCP में नंबर ऑफ आयंस जो है वो 6 हो जाता है. Z का वैल्यू. ओके. हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक जो होता है AB टाइप का 3D पैकिंग, उसमें Z का वैल्यू 6 होता है. और CCP सिमिलर टू FCC होता है which is having Z equal to 4. तो इन केस यहाँ पे अगर HCP दिया होता तो ये 6 होता और ये डबल 12 हो जाता और ये भी 6 होता. और बाद में जो भी प्रपोर्शन में दिया होगा उसके हिसाब से यू कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला. क्लियर? Next, in a 0.5 molal aqueous solution of a weak acid HX, the degree of ionization is 0.2. The freezing point of the solution will be nearest to.
1 minus alpha plus n dash alpha. हाँ, अब सबसे पहले हमेशा बिफोर यूजिंग एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, द फॉर्मूला टू बी रिटन इज डेल्टा TF इक्वल टू K delta KF delta M. I kf I into kf I into into kf. KF into छोटू m. So I- थियोरी में जनरली हम KF m ही लेते हैं, दैट इज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. बट आगे जब हमने एबनॉर्मल मोलर मासेस किया तो वेंट ऑफ फैक्टर को कंसिडर किया था. तो उस केस में मैंने बोला था कि जब भी MCQ सॉल्व करो बाय डिफॉल्ट IKFM ले लो, और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I1 होगा. अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो I का एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस N dash n डैश अल्फा. बट दिस इज द वैल्यू फॉर 1.2. Dissociate. Disso. या फिर अगर असो हो रहा है तो 1 1 माइनस minus अल्फा प्लस Plus Alpha by n dash. n Alpha डैश by n नीचे आ dash. जाएगा अल्फा बाय n डैश. N dash. ठीक है, तो ये अपना वीक एसिड डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है. तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस अल्फा, अल्फा 0.2 है तो 1.2 हो जाएगा. तो I की वैल्यू 1.2 आई इंटू 1.2 KF इज 1.86. पानी का कांस्टेंट रहता है एंड मोलैलिटी हाफ है, 0.5. तो ये 1.86 इंटू 0.6 हो जाएगा. ऑन कैलकुलेशन यूल गेट 1.116. आंसर Minus 1.116. D नहीं है, C. आंसर C होगा. C ना. हाँ सॉरी फ्रीजिंग है ना. फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट. अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा होता तो आंसर D होगा. तो Okay. ऐसे क्वेश्चंस में आपका सिर्फ साइन में गफला हो सकता है. ओके क्या सर. पूछा है वो ध्यान से देखो. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए. ठीक है, ये वाला जो है वो आपका डेल्टा TF डिप्रेशन कितना है वो आया, लेकिन आपको डिप्रेशन नहीं पूछा था, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा था. तो 0 से कितना कम होगा वो पूछा है, तो आंसर होगा Minus -1.116 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स नहीं करना है. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. सेंटर एक-एक का करके देखते हैं. N+2. तो क्रोमियम A यहाँ या तो पर B प्लस होगा. 3 में है. CR+3. सुनो इस सबको सॉल्व करते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है. मेन बाद में आंसर तो ठीक है, सबको सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं. Cr+3 है. अब क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होता है, तो 3d5 4s1 में से 3 गया तो बचा सर लिगेंड देखना पड़ेगा ना, 3d. वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग हाँ फील्ड. हाँ हाँ. कमिंग टू दैट, पहले फर्स्ट स्टेप में क्रोमियम +3 है तो D के कितने इलेक्ट्रॉन है 3d3. सेकेंड पॉइंट, लिगेंड NH3, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एस पर स्प्लिटिंग के हिसाब से देखना है, डायरेक्टली 5 T2G नहीं देखना है. तो T2G में XY YZ ZX, और ये होगा x² - y² और z². ऊपर वाला T2G है ना. नहीं, नीचे वाला T2G ऊपर EG. नीचे वाला में उल्टा हो जाता है, और वो दूसरे में उल्टा हो जाता है. टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है. ओके सर. ठीक है, तो 3d3 में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा 1 2 3. इसमें तो पेयरिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है कितना आ रहा है 3. नेक्स्ट Mn CN6 4- ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +2. +2. पहले स्टेप में सेंट्रल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, फिर उसके d इलेक्ट्रॉन देखो. 5. Mn होता है 3d5 4s2, 2 गया तो 3d5. 3d5 अब साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड strong field ligand. Strongest. हाँ, COCN CO is strongest. COCN NH3 लिगेंड है. CN- बाद में आता है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 4 इंपॉर्टेंट है. COCN COCN NH3. NH3, ये 4 तो याद रखना ही है. ठीक है, अब तो 3d5 में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा. 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 तो होगा 1 एक अनपेयर्ड 2 3 4 5, 5. मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 होगा. ठीक है, तीसरा कोबाल्ट का +3 है, तो फे को 3d7 4s2, तो 3d6 होगा.
3d6. अब फ्लोराइड जो है दैट इज अ वीक वीक फील्ड फील्ड वीक फील्ड लिगेंड. कैसे एंटर नो होगा? पैरिंग. 1 2 3 ऊपर, 4 5 6. 4 कितना बचा? अनपेड. 4 अनपेड. ठीक है. और NiCO4 में Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट 0. 0, Zero. न्यूट्रल है वो. सारे मतलब यहाँ पर आएगा 3D 8 4s2. ठीक है. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट. CO इतना स्ट्रॉन्ग है कि सबको पेयर करवाएगा. sp3 sp3 पैर करवाने के साथ साथ एक और चीज होता है. शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन. हाँ, 4s के 2 sp3 है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं. मतलब 3d8 में सारे इलेक्ट्रॉन पैर अप तो हो ही जाते हैं एज ए 1 2 3 4 5 6 7 8. जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन S का है भी वो shift भी है. यहाँ पर स्विच कर जाता है. ठीक है. This is as observed because of the hybridization. That's why now the why. NiCO4 का hybridization is sp3 and it is having a tetrahedral geometry. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसका. ठीक है. तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0 0. आपको लोवेस्ट पूछा था, yes यही sir. तो यही D. आंसर है. इसमें तो यही आएगा आंसर. ये तो ठीक है. सबको सॉल्व किया जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी गो अबाउट द स्प्लिटिंग एंड फिलिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? फैक्चुअल है नेक्स्ट. Which of the following is not an antiseptic? Bithionol. ranitidine. आंसर ranitidine है because ranitidine is an example of. एक सेकंड जिंटैक के साथ था ये. हाँ, और जिंटेक कब लेते हैं? जिंटैक पेट शिट मेरे को याद नहीं. एंटीबायोटिक. नहीं, एंटासिड है. एंटासिड है पेट अच्छा. Ranitidine, जिंटेक एक ही होता है, एंटासिड्स होते हैं. ठीक है. बाइथायोनल ऑब्वियसली वो एसएस वाला स्ट्रक्चर है इसमें. ठीक है. एंटीसेप्टिक है. डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज आल्सो यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक. ठीक. एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज आल्सो एन एंटीसेप्टिक. तो ये तीन तो है ही एंटीसेप्टिक. रेनिटिडिन एंटासिड्स की फैमिली. गो थ्रू दिस चैप्टर वंस अगेन. इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं. आया ना जेई में इतना परेशान किया तो है. लास्ट ऑप्शन क्या था? डाइल्यूट बोरिक एसिड H3BO3. इवन दैट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक. बैकग्राउंड इज अ कंडीशन. आई वॉश के लिए यूज करते हैं ना बोरिक एसिड. हाँ एग्जांपल है बराबर. नेक्स्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर? Teflon Teflon because Teflon is an CF2. addition PTFE polymer. chain addition chain वाला. चेन हाँ, कॉल. और इसका chain group मोनोमर है polymer. CF2. CF2 हाँ CF2. हाँ, मतलब C2F4. तो CF2 डबल हाँ. बॉन्ड CF2. इसलिए इसको PTFE भी बोलते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलीन. polytetrafluoride. ठीक है. चलो बाकी भी ये डिस्कस क्या है सर? टेफ्लॉन इज ये- एडिशन पॉलीमर. हाँ ये Chain group. ग्रिप्टल बहुत चेन दिखा ग्रोथ है. ना मतलब. हाँ, It- एडिशन इज चेन ग्रोथ एंड कंडेंसेशन इज स्टेप ग्रोथ. स्टेप ग्रोथ. अब डेक्रोन के मोनोमर्स क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल और And टेरिफ्थैलिक एसिड. terephthalic पूरा acid. नाम बोलो. टेरिफ्थैलिक एसिड. डाइमिथाइल. Dimethyl terephthalate. Dimethyl terephthalate. Dimethyl terephthalate. It's an ester, diester of terephthalic acid. हाँ. Glyptal इथिलीन Yes. ग्लाइकॉल प्लस Glyptal तो वो सर उसमें ना. used in paints. टेरेफ्थैलिक एसिड. हाँ, इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल और Cervix, टेरेफ्थैलिक एसिड आता है. डेक्रोन के साथ इसको याद रखो. हाँ. वहां पर DMT है, ग्लिप्टल में टेरेफ्थैलिक एसिड है. और नाइलॉन तो 6 का एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम वाला. एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. Caprolactam. दो वाला रिंग. 7 membered ring. 7 membered ring. 7 मेंबर. हाँ. So double bond glyptal is NH वाला. wigs or paints. Glyptal is wigs or paints. Glyptal is paints. Dynel is wigs. Paints Wigs. ना. हाँ, ग्लिप्टल यार, प्लेन्स के लिए है वो और पता डाइनल जो है वो हेयरविक्स के लिए होता है. है. Hair wigs के लिए ओके फाइन. नेक्स्ट. बी कंपाउंड ढूंढना है.
पहला रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड, COCl 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 बन जाएगा तो बराबर। A में क्या होगा, ये CH3CHCl वाला पार्ट तो सेम रहेगा एंड विल गेट द असाइल हैलाइड। उसके बाद वी आर रिएक्टिंग दिस विद एनिलीन, बेस NH2Cl NHCl NH2 का H हाँ, Cl के NHCl साथ निकलेगा। हाँ एनिलीन जो है यहाँ पर बेस का काम करेगा, वीक बेस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर HCl एलिमिनेट हो जाएगा और Cl जो है दैट विल गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय द अमाइन ग्रुप, यानी CONH बन जाएगा और यहाँ C6H5। बताओ आंसर। NHCO नहीं है? है, पता नहीं यार। D अरे D डी सेम ही है ना? नहीं COCl ना, अच्छा COCl है D D। ए ना, क्यों? अरे CH3 CHCl C डबल बॉन्ड हो, हाँ सॉरी अच्छा NH ए, हाँ, ए ही है, वही तो मैं कंफ्यूज right, था। right, right। ए ए हाँ NH मिसिंग है D में, तो आंसर A है। C डबल बॉन्ड ONH, ये पेप्टाइड लिंकेज आ रहा है, यस सर। पेप्टाइड अमाइड। लिंकेज, अमाइड लिंकेज। सर 42। एसिड्स में वो, हेलो सर, वो लास्ट वाला रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है ना एसिड्स में, वो नाम क्या HVZ, है? HVZ हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, अल्फा हेलोजनेशन। रेड P प्लस Br2। हाँ रेड P प्लस Br2। ओके ओके सर। चलो यहाँ पे D आइडेंटिफाई करना है सीक्वेंस में। तो पहला रिएक्शन वी हैव साइक्लोपेंटेन CH2Cl aqueous KOH, क्या मिलेगा? CH2OH मिलेगा, एक्वेस नहीं OH मिलेगा। नहीं चलो कार्बोकेटाइन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? aqueous Sorry। KOH में सबसे पहले आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा। हाँ C2H5 ओके, इथॉक्साइड। क्या बोल रहे थे? कार्बोकेटाइन शिफ्ट होगा फिर हाँ रिंग एक्सपांशन होगा इधर भी तो। एक्सपेंशन। अभी मैंने बोला था 5 मेंबर्ड रिंग और बाद में पॉजिटिव चार्ज अगर रहेगा बाहर तो एक्सपांशन होने के फुल चांसेस होते हैं। तो अगेन नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। कौन सा टूटेगा कौन सा जुड़ेगा बोलो? 1 6 टूट 1 6 टूटेगा और 1 में बॉन्ड आएगा। 5 6 टूट पागल है जाएगा। क्या? 1 5 रिंग टूटेगा एक्सपांड और करने के लिए रिंग टूटेगा कि बाहर का बॉन्ड टूटेगा? अच्छा वो 1 सॉरी 5 सर, टूटेगा और 1 6 5 5 जुड़ेगा। 1 5 टूटेगा 6 5 जुड़ेगा। वापस ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग एक्सपांशन में 1 और 5 टूटेगा और 5 और 6 जुड़ेगा, ठीक है। अब जो टूटा पे उसमें से positive। कौन सेटिस्फाई हुआ? 1 पे पॉजिटिव 5 सेटिस्फाई हो गया ना, क्योंकि उसको हाँ। बॉन्ड मिल गया है। लेकिन 1 बेचारा रह गया, तो जो बेचारा वो गरीब। दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन और कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज रख दो, फर्क पड़ेगा क्या? ऑल द कार्बन्स आर आइडेंटिकल नाउ ना। सिमेट्रिकल है। हाँ तो ये साइक्लोहेक्साइल कार्बोकेटाइन बन गया, यस क्लियर। और बाद में उसके ऊपर OH आएगा तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। अब आगे H प्लस हीट दिखा मतलब क्या करने का? डबल बॉन्ड एलिमिनेशन। साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा बाय एलिमिनेशन। फिर ओजोनोलिसिस जिंक के प्रेजेंस में CHO जिंक है तो अल्डिहाइड बनेगा, जिंक ना हो तो COH बनेगा, एसिड बन जाएगा। तो ये कौन सा अल्डिहाइड है देखो? हेक्सेन CHO 16 डायल है ना। और अब NaOH अल्कलाइन मीडियम, कौन सा रिएक्शन? अल्डोल इंट्रामोलिकुलर अल्डोल है ना। एक ही एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल है, तो आई थिंक इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आगे। डी पाई बी। हाँ आंसर बी है। क्यों? पाई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन ना। तो ये आपका अल्फा कार्बन है और ये बीटा, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड देख लेने का। जब भी अल्डोल आए टाइम ना हो तो सीधा ये शॉर्टकट है, ठीक है। और ये इंट्रामोलिकुलर
अल्डोल कंडेंसेशन का स्पेशल एग्जांपल है जो मैंने क्लास में डिस्कस किया भी है। हाँ, एक बार रिएक्शन दिखा सकते हो सर, ये CHO वाला अल्डोल का कोई भी? देखो इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था पहले, तो CH2 CHO, नीचे CH2 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो अल्डोल कंडेंसेशन में मैकेनिज्म क्या था? सबसे पहले देयर इज अटैक ऑफ OH माइनस। ठीक है, नाउ दिस OH माइनस टेक्स अवे द एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ द अल्डिहाइड, और एसिडिक कौन सा होता है? अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर आपका जो कार्ब अनाइन बनेगा दैट विल बी CH2 CH निगेटिव, कार्बन आयन इंटरमीडिएट होता है इसका। फिर यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और H। खिचड़ी बन गया, एक मिनट। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है। हार्दिक, यस सर। नाउ दिस Yes, कार्बन sir. आयन विल अटैक द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, और जैसे ही अटैक करेगा देखो कितने मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है? 6 नंबर। 6 Five. नहीं, 5 मेंबर्ड रिंग। 1 2 अच्छा, 3 4 five. 5, अरे और बाहर CHO आ जाता है, Five. बराबर। और फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है तो OH बन जाता है। फिर डिहाइड्रेशन होने के बाद ये डबल बॉन्ड आता है अल्फा बीटा पे। तो फाइनली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग विद एन अल्डिहाइड, एंड जो OH है उस पे डिहाइड्रेशन होकर यहाँ डबल बॉन्ड आता है। दिस इज साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड। समझा मैकेनिज्म? ओके, नेक्स्ट। बहुत अच्छा सर वो क्वेश्चन अल्फा आया बीटा हुआ का है। क्या बोला आपने? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बनता है ना, मतलब जो डबल बॉन्ड होता है अल्डोल के प्रोडक्ट में वो अल्फा और बीटा के बीच में होता है। अच्छा, ओके। अल्डोल के प्रोडक्ट का खास बात क्या था? कार्बोनाइल और उसके बाजू वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन होता है ना, एंड दिस कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी। यस सर। नेक्स्ट, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। जिंक अमालगम OH नहीं अफेक्ट डबल बॉन्ड और CH2 बन जाएगा। यही हाँ? होगा, यही होगा, यही। 3 बन जाएगा वो ना। गलत। नहीं, HCl भी है, हाँ। D होगा, D। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में एसिडिक मीडियम होगा, एसिडिक, हाँ। तो फिर OH acidic विल है। आल्सो गेट सब्स्टिट्यूटेड। ये मैंने OH क्लास में का- बताया भी है, हाँ। यस। मेरे हैंडरिटन नोट्स में लिखा भी है मैंने। Yes. तो OH की जगह Cl आ जाएगा, Yes, sir. एंड ये वाला यार तू चुप बैठ। मतलब तेरा वापस चालू हो D गया। डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। हाँ, क्या मैंने थोड़ी बोला कुछ। अरे आप बोल रहे हो लेकिन बहुत बाद में आ रहा है। ठीक है, चलो। तो ये So C could you डबल बॉन्ड और explain once CH2 मिथाइलिन बन जाएगा। यस, सी क्लेमेंसन्स रिडक्शन और वोल्फ किश्नर में प्रोडक्ट तो सेम ही था। हाँ, खाली एसिडिक और बेसिक मीडियम। हाँ, तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन हम कब यूज करेंगे? जब कोई ग्रुप H+ या एसिडिक मीडियम से अफेक्ट ना हो, तब क्लेमेंसन्स यूज करना चाहिए। तो अगर इस केस में हम क्लेमेंसन्स यूज करेंगे जहां पर एक ग्रुप जो एसिडिक मीडियम में अफेक्ट हो सकता है, जैसे Cl- could leave with H+ ना, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। सॉरी, एसिडिक मीडियम में क्या होगा? जो OH है H2O it will बनाएगा। get protonated and will form H2O, तो यहाँ Good पे lead. कार्बोकैटायन बन जाएगा, and that कार्बोकैटायन could get attacked by Cl। तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन भी होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे OH will get replaced by Cl, and दूसरा तो as expected कार्बोनाइल changes to methylene also। ठीक है, लेकिन अगर मुझे फर्स्ट वाला प्रोडक्ट चाहिए होता विथ OH अनअफेक्टेड, तो मैं Wolff इस Kishner. कंपाउंड को Wolff वोल्फ किश्नर Wolff से रिएक्ट Kishner. करता, जहाँ पर बेसिक मीडियम है और OH अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, बट अगर ये रिएक्शन क्लेमेंसन्स के थ्रू होगा तो आंसर डी आएगा। ये आ चुका है जेई में। So तो हर टाइम Cl सब्स्टिट्यूट होगा? हाँ, whatever groups are affected via acidic medium, they will all get substituted, meaning there will be two reactions happening simultaneously.
यही तो कंपैरिजन बताया था क्लेमेंसन वर्सेस वॉल्फ किश्नर। दोनों का फंडा कार्बोनाइल के लिए सेम ही है, मतलब कार्बोनाइल चेंजेस टू CH2, बट डिफरेंस में क्या था, ये एसिडिक मीडियम और ये बेसिक मीडियम। ग्रुप Yes, के sir. हिसाब से आपको रिएक्शन डिसाइड करना होता है। ठीक, Yes, sir. नेक्स्ट खतरनाक क्वेश्चन है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन मेजर अमाउंट? Hmm. वापस आपको एक साइक्लोहेक्सेनॉल कंपाउंड दिया है इसमें और भी रिंग उसके एक्सपेंशन साथ एक 5 मेंबर्ड रिंग दिया है एक्सपेंशन और पहला HBr का रिएक्शन। हाँ, तो यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन 5 पहले, मेंबर्ड रिंग हाँ, स्पाइरो के थ्रू है, तो 6 कार्बोकेटाइन रिंग 6 एक्सपांशन बन जाएगा। करेगा। ठीक है, कैसे करेगा, एक एक हाँ, स्टेप देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कार्बोकेटाइन इधर बन जाएगा, हम्म, है ना। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा और कौन सा जुड़ेगा, लेट्स से अगर मैं इसको नंबर कर देता हूँ, आसान होगा, सॉरी, जस्ट नंबर दिस। लेट्स से ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और कार्बोकेटाइन का कार्बन 6 है। चलो, कौन सा टूटेगा कौन सा जुड़ेगा? 1 2 1 5 1 5 टूटेगा 1 और 5 5 6 टूटेगा जुड़ेगा। और 5 6 जुड़ेगा। तो 5 हाँ 6 देख, 1 2 जुड़ेगा। नहीं टूट सकता है, बिकॉज कार्बोकेटाइन के सामने कार्बन कौन सा दिख रहा है, 5 ना। हाँ तो रिंग एक्सपांड इधर से होगा, 1 5 टूटेगा और एक नया बॉन्ड 5 और 6 के बीच में बनेगा। ओके सर और 1 पे पॉजिटिव। तो अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन रिंग एज इट इज है, इधर मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और ये मेरा 6 कार्बन है। बॉन्ड किसके बीच में बनाना है? 1 पे पॉजिटिव, 5 6 5 और 6 पे, तो 5 6 पे नया बॉन्ड है ना, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर? 1 पे। समझा? 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया है रिंग एक्सपेंशन का आज, ये तीसरा है। ओके, Yes. अच्छा, इसको थोड़ा और बेटर वे में ऐसे लिख लो क्या, 2 साइक्लोहेक्सेन के रिंग्स आजू बाजू में है, हाँ, बाजू बाजू भाई ऐसे ही। ये 1 6 मतलब ये 1 6 है, राइट? कैन आई शो इट लाइक दिस? Yes, And now the sir. positive charge is at this carbon. Yes, First sir. carbon. Okay, और फिर Br माइनस का अटैक होगा और ये बाईसाइक्लो कंपाउंड Br. के कार्बन पे Br कॉमन हो जाएगा। ठीक है, आगे अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? डबल Elimination. बॉन्ड मतलब ना एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये CH2 और दूसरा ये वाला Hyper CH। hyper conjugation. हाइपर कॉन्जुगेशन और दूसरा सिट्जेफ एलिमिनेशन यूज करो ना। क्या बोला था सिट्जेफ? कहाँ से निकलेगा? More substituted स्टेबल ओके position. मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। डबल बॉन्डेड अल्कीन इज मोर स्टेबल तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, नीचे की साइड में? Side में आएगा. नहीं, नहीं सॉरी, एक सेकंड. नीचे आएगा सर। नीचे आएगा. वही नीचे से CH2 का नीचे सिंपल आएगा, रूल नीचे बोला आएगा. था, जहाँ भीड़ का हम H को निकालना आसान। H को निकाल लो भाई, बराबर। ठीक है, फिर ओजोनोलिसिस जिंक H2O वाला, मतलब अल्डिहाइड बनेगा। Yes. तो यहाँ पर बीच वाला बॉन्ड अब गायब हो जाएगा। कीटोन बनेगा ना सर। हाँ, ये ये बॉन्ड टूट जाएगा और इन दोनों ऑक्सीजन का सॉरी डबल बॉन्ड ऊपर और नीचे आ जाएगा। अब NaOH दिया है, सिमिलर टू प्रीवियस एग्जांपल, एल्डोल ही है। ही होगा अल्डोल ही होगा। तो अब यहाँ देखो, अल्डोल में अभी मैंने मैकेनिज्म भी बताया आपको। अल्फा बीटा वाला हाँ, ठीक है। सो अब कार्बोनाइल के बाजू वाला जो CH2 है वो अल्फा कार्बन है, वो एसिडिक है, तो यहाँ से कार्बोनाइल बनेगा।
फिर वो कार्बन आयन जाकर अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे, तो अब ये हाँ। जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो बन जाएगा 5 मेंबर। नहीं, ये नहीं वाला नहीं 6 मेंबर्ड ऑन द लेफ्ट विल चेंज टू 7 मेंबर्ड, ओके, जो 7 राइट membered 6 वाला है दैट विल चेंज टू 5 7 मेंबर्स 5 मेंबर। मेंबर्ड five रिंग। तो membered इसको मैं 7 मेंबर्ड रिंग के हिसाब से बना रहा हूँ, 7 मेंबर्ड रिंग ऐसा हेप्टेनोन वाला, ठीक है, और उसके बाजू में यहाँ पर 5 मेंबर्ड का ऐसा रिंग बनेगा, तो जो 6 का रिंग है वो 7 में कन्वर्ट हो गया, 7 5 का, यस। ठीक है। अटक गया। और अगर मेरा कार्बोनाइल हेलो। ग्रुप जो है, हाँ हेलो हेलो, तो 3 हाँ 4 हाँ 5 सर, 6 करो है करो। ना, हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हाँ सर आ रहा है आ रहा है। हाँ, उसका तो नेट बंद हो गया। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लाना है, मैंने अभी शॉर्टकट बताया आपको अल्डोल का, तो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म। गंदा। कितने प्रोडक्ट बनेंगे ऐसा पूछा था। आर देयर एनी आइसोमर्स एसोसिएटेड विद दिस कंपाउंड? यस। हाँ, हाँ। कोई आइसोमर्स है क्या? नहीं है, कीटोन और डबल बॉन्ड है, आइसोमर्स एक भी नहीं है, एक ही यूनिक प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एंड दैट इज दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो तो अनदर, कोई सर में आइसोमर साइक्लिक बनता है सर? साइक्लिक हाँ, साइक्लिक में 8 से ज्यादा हो तो बनता है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है ना। वो हाँ एल्किन्स के अंदर होता है ना वो, ए ये मोर देन 8। बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो है, 7 और 5 का रिंग का बाईसाइक्लो कंपाउंड है, हाँ इसमें आइसोमर्स नहीं मिलेंगे आपको, काइरल कार्बन कोई भी नहीं है ना, नहीं, तो इसमें स्टीरियो आइसोमर्स एक भी नहीं मिलेंगे आपको। सर कोई भी अल्डोल में नहीं मिलेगा आइसोमर्स? नहीं, अल्डोल में नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, इस कंपाउंड के लिए नहीं मिलेगा, है ही नहीं ना। अल्डोल में मिल सकता है, मतलब दिस इज नॉट द केस ऑफ अल्डोल का प्रोडक्ट, इट इज लाइक अ कंपाउंड, इसके आइसोमर्स नहीं होंगे। तो पहले वाला जो डिस्कस किया था CH वाला जिसमें अल्डोल प्रोडक्ट बना था, उसमें है आइसोमर्स? तो पॉसिबल। ये हाँ इसमें ये वाला हाँ। नहीं, इसमें भी नहीं है, बिकॉज नहीं। आजू बाजू कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है तो आजू बाजू कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, यहाँ पे तो H है ना, अरे हाँ अगर समझा। सब्स्टिट्यूएंट्स H है ना अलग दोनों होगा साइड। तो मिलेगा, साइक्लोपेंटीन में अलग मिलते हैं आइसोमर्स ज्योमेट्रिक वाले, ओके। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? सुक्रोज। आग बंद करके, ओनली सुक्रोज इज ओनली एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग। अब इंटीजर टाइप है ये, 100 ml 0.3 mole of NaCl and 0.3 mole of CaCl2 were dissolved in water to produce 800 ml solution. Molarity of the Cl minus ions is, हाँ, तो पहले से 0.6 देगा, दूसरा वाला 9 हो जाएगा। 0.9 अपॉन 0.8। perfect, correct. See, NaCl say there will Into be 1000. 1 mole of chloride which will be 0.3 mole only, 9/8 1000 का। but CaCl2 से twice of chloride मिलेगा, मतलब उसका moles double हो जाएगा, and upon volume जो है 800 ml की जगह 0.8 लीटर हो जाएगा, so answer will be equal to 9/8, 1.125 which is equal to 1.125 25 मोलार। अब कितने तक ट्रंकेट करने बोला है वो हिसाब से आप आंसर कर वो सकते हो, करेंगे इसमें। हाँ हाँ, तो 2 डिजिट तक अगर बोला तो 1.12 तक रुक जाना है, ठीक है। अच्छा, अगर ये 1.13 लेंगे फॉर्मेट ना में फिर। बोला है कि 2 डिजिट्स बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल, तो कैसे लिखेंगे? 01.12। हाँ हाँ हाँ, एडवांस में ऐसा होता है। हाँ, तो जस्ट अभी मेंस में किस हिसाब से है वो, अब रूल्स आप एक बार पढ़ लेना, उसके बाद ही मेन अटेम्प्ट में तो सब अलाउड होता है। क्या? मेन में सब अलाउड होता है, मेन में सब कुछ राइट देते हैं वो लोग। हाँ, एक्चुअली वो नहीं करना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट था, अभी पता नहीं अगर सेकंड अटेम्प्ट में कुछ रूल्स निकाल दे वो लोग, तो ध्यान रखो बस,
Just make sure that you read the rules and then only attempt. Okay. चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक अच्छा क्वेश्चन. I2I minus 0.1 molar half cell is connected to H plus H2 half cell and EMF is found to be 0.7714 volts. If E naught of I2I minus is given, pH of H plus H2 half cell will be H2 का तो 0 होता ना. H plus H2 मतलब H plus के concentration को ढूंढ के pH ढूंढना है. अच्छा मुझे स्टेप वाइज बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? कैथोड एनोड पहले डिसाइड करेंगे. वेरी गुड. हाँ. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सिंपल सा फ्लो है which is always to be followed. Remember that. रिडक्शन पहले I2 पहले कैथोड एनोड डिसाइड करोगे. अब आपका I माइनस का EMF 0.535 है, उसका 0 है, और दूसरा तो I2 कैथोड बनेगा. तो ऊपर वाला कैथोड, नीचे वाला एनोड. फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड कैथोड एनोड. सेकंड स्टेप सर हाँ करना था कैथोड एनोड का. ऊपर वाला हायर SRP refers to कैथोड, लोअर SRP refers to एनोड. तो मैंने आपको सिंपल ट्रिक दिया है. ऊपर वाला कैथोड, ऊपर देख, ऊपर वाला कैथोड. ऊपर देख, हार्दिक. चलो बस. ओके, कैथोड एनोड डिसाइडेड. नाउ सेकंड स्टेप. बोल. फर्स्ट इक्वेशन नहीं, बिफोर कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस हाफ रिएक्शन नहीं. E नॉट इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड. अच्छा हो, रिप्रेजेंट द सेल. आप सेल रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर करोगे तो आपका नर्स्ट इक्वेशन, ई नॉट ऑफ द सेल सब प्रॉपर जाएगा. इसलिए इलेक्ट्रोकेम के नर्स्ट इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व्ड इन दिस मैनर ओनली. फर्स्ट स्टेप डिसाइड द कैथोड एनोड. सेकंड स्टेप रिप्रेजेंट द सेल. नाउ रिप्रेजेंटेशन के लिए आपका एनोड शुड बी ऑन द लेफ्ट. एनोड कौन है? यस सर, SHE. अब SHE में H2H+ लिखोगे, H plus H2. H2H+. या आयंस आपके बीच में होने चाहिए. बीच में. तो H2 गैसियस, H plus aqueous. उसके बाद सॉल्ट ब्रिज. अब I2I minus में I should write first I minus and then I2. This is anode which is negative and this is cathode which is positive. और इसमें जो भी कंडीशंस दिया है, H2 का 1 बार वो लिख लेंगे. H plus का कॉन्सेंट्रेशन वही तो ढूंढना है. I minus का 0.1 दिया है और सॉलिड को तो हम नहीं लेते हैं. ठीक है. अब थर्ड स्टेप रिएक्शन. अब रिएक्शन को शॉर्टकट में सबसे पहले H2 is getting oxidized to 2H plus. हाँ. And I minus 2. रिड्यूस कौन हो रहा है? I2 हो रहा है कि I minus हो रहा है? I minus रिड्यूस हो रहा है. I2 रिड्यूस हो रहा है. I2 ये देखो हैलाइड्स में ना उल्टा पुल्टा होता है. हाँ I2. हैलाइड्स में उल्टा पुल्टा होता है. अनायन है ये. I2 gives 2I minus. तो क्या लिखेंगे? I2 रिड्यूस होकर 2I minus. इसलिए बोला रिप्रेजेंट करो, उसके बाद रिएक्शन लिखो. ठीक है. अब नस्ट इक्वेशन यूज करने से पहले E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, 0.535. राइट हैंड साइड I2I माइनस E नॉट ऑफ SHE. SHE तो 0 होता है और जो वैल्यू दिया है वही अपना सेल का EMF होगा 0.535 वोल्ट. अब फोर्थ स्टेप में आप नस्ट यूज करोगे. यहाँ तक आने के लिए ये सब चीज करना इम्पोर्टेंट है. So E of the cell is equal to E naught of the cell minus 0.065 upon 2 into log to the base 10 product में H plus I minus. concentration square I minus concentration square upon pressure of H2. solid को तो लेना नहीं है. This is how you write. Yes sir. समझा? Yes sir. ठीक है. पेशेंटली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, घाई करके नहीं आएगा. 0.7714 इक्वल टू 0.535 माइनस 0.03 log to the base 10.
अब यहाँ 0.03 अप्रोक्सीमेशन है, इसका एक्चुअल वैल्यू 0.0592 अपॉन 2 आएगा, 0.0296 आता है। ठीक है, तो एक्चुअली कुछ ऐसे क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेशंस आपको देने चाहिए इसमें। अच्छा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपको ढूंढना है और ये 0.1 है, तो दिस इज 0.1 का स्क्वायर एंड अपॉन बार प्रेशर 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब 0.7714 माइनस 0.5350, ये 4 6 माइनस 3 और 2। ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 0.2364 अपॉन और राइट हैंड साइड 0.03 में 0.03 जो है वो इधर ले लूंगा और माइनस साइन को रेसिप्रोकल रेसिप्रोकेट कर अच्छा। लूंगा। क्या तो आई टेक log of 1 अपॉन अरे लॉग का 0.01 रेसिप्रोकल H प्लस का स्क्वायर। ध्यान देना ये स्टेप में ओके ओके 0.7714 और 0.535 को सब्ट्रैक्ट किया, 0.03 को नीचे लाया और माइनस को यहाँ बैलेंस ऑफ किया। ठीक है, ये तो 8 आ जाएगा ना, 8 इज इक्वल टू log 10 log 10 बराबर 8 एग्जैक्टली आ रहा है। log 10 टू द नहीं अप्रोक्सीमेटली। अरे नहीं हाँ। सर, अभी वो 24 ले लो ना। हाँ, अभी वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इंटीजर टाइप में जनरली आपको कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेशंस देने चाहिए, देन ओनली वो अप्रोक्सीमेशन वैलिड होंगे कि ये वाला ये जो 24/3 हो जाएगा। हाँ तो 0.24 8 अपॉन 0.03 ये ऑलमोस्ट 8 आएगा। हाँ तो ठीक है, 10 तो raised to 10 1 रेज कैसे टू करने 8 का ले सर? लेता हूँ, लेना पड़ेगा 1 1 अपॉन upon H प्लस स्क्वायर H इंटू plus 10 रेज टू square. -2, तो H प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर -6, हाँ H 3 plus होगा is equal to pH 10 raised to -3 molar, तो pH 3 होगा। therefore the pH will be equal to 3.00। ठीक है, बहुत बड़ा समा। बहुत बड़ा था लेकिन काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ रिवाइज हुए हैं। हाँ सर एक सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वाला भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ सर KSP तो मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ, क्वेश्चन के साथ इट विल बी इजियर टू डिस्कस। यस तो यस टाइट्रेशन वाला भी लेके आओ ना एक आध, कौन सा? ठीक है टाइट्रेशन का एक आध लेके आना। ओके ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट। PQ3 dissociates as ये और है PQ3 dissociates as PQ2 plus half of Q2 when the initial pressure of PQ3 is 400 torr, ये initial है, and total pressure at equilibrium developed is 450 torr. What percentage fraction of PQ3 is dissociated? हाँ सर आइस टेबल Correct. आज टेबल ये भाई तो 400 0 0, 0 0 ठीक है, चेंज यहाँ पर X कितना लेंगे? माइनस एक्स माइनस X ही आएगा ना? प्लस प्लस एक्स प्लस और इधर X क्यों लेगा? हाँ ये X by माइनस 2. एक्स बोला, ये हाँ उसका ही उधर x/2 ये प्लस by एक्स 2. और ये x बाय 2 2। स्टोइशियोमेट्री ध्यान रखना है। ठीक है, और अब इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा 400 माइनस एक्स 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 बाय 2, therefore total pressure at equilibrium 400 plus x/2 प्लस is एक्स बाय equal to 400 450 minus x x equal to plus 100 x plus x by 2 and this is equal to 450, 50 ये गायब हो जाएगा। 100 x equal to 100 x 100 आ रहा है टॉर, तो 100 डिसोसिएट हुआ ना 25%। परसेंटेज फ्रैक्शन विल बी 100 25 अपॉन टोटल कितना था 400 400 into 100 which 100 is 25%. 25%. So answer will be 25.00. ठीक है, yes sir. the root mean square speed of 4 gram helium is 300 meters per second. Total 3 kinetic RT by energy अंडर रूट 3 RT of helium gas is so kinetic VRMS. energy is 1/3 rho RMS square। नहीं, डायरेक्टली आरटी के टर्म्स में है अरे ना हाफ भाई। एम बी स्क्वायर ही कर, अरे पर v दिया ना तो हाफ एम बी स्क्वायर ही करेंगे ना सीधा सर। अच्छा वो हाँ ठीक है, क्या हाफ बोल एम रहे बी हाफ
हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। हाँ वही वही। हाँ ओके। ठीक है। एक और मेथड कर सकते हो आप। कौन वी सा आर एम एस का फॉर्मूला क्या है? √3 RT/m। √3 RT/m। एम ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी आरटी के टर्म्स में भी है ना, 3/2 3 by इंटू 2 मोल्स आरटी। RT 3 by 2 NRT एनआरटी 3/2 NRT। एनआरटी। तो अगर मैं आरटी की वैल्यू यहाँ से लेकर आऊं तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना? हाँ समझा? ये भी कर सकते हो और वही तो डायरेक्टली किया, वही तो आया अरे सर, वही आएगा हाफ वही तो MV आया सर, MV स्क्वायर बाई 3 तो आएगा। हाँ हाँ हाफ मतलब वही सब्स्टिट्यूट VRMS किया। स्क्वायर। ठीक है। अभी सॉल्विंग मतलब फर्स्ट स्टेप से पर करो और सर बाद में। हाँ उसमें मोल्स का भी तो है ना प्रॉब्लम, किसमें? उसमें मोल्स का भी रिलेशन लाना पड़ेगा, मोल्स अलग रहेगा ना। इसमें 4 ग्राम दिया है पर और कुछ दिया होता तो मोल्स का भी प्रॉब्लम होता। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। तो बोल रहे हेलो, मोल्स का रिलेशन कहाँ से आएंगे? हाफ एमवी स्क्वायर में मोल्स का रिलेशन नहीं आएगा कि हाफ एमवी में आएगा मोल्स स्क्वायर ही करेंगे सर, डायरेक्टली हाफ एमवी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है चलो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है। तो हाफ ऑफ मास, मोल्स आ गया ना। Shit. मास कितना लेंगे? वो 0 अरे किलोग्राम में। हाँ किलोग्राम में, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंटू वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर 3 स्पीड RT भाई। 300 और 300, 180 4 3 12, 180 हाँ 180। तो 180 जूल्स वुड बी द आंसर। ये किलोग्राम में लेना भी इम्पोर्टेंट है। 10⁻³ ठीक है। Yes. An ideal gas is taken around the cycle ABCA as shown in PV diagram. Net work during the cycle एरिया half Area into under the graph. volume changes 2V and pressure changes 5P. 2 to cancel, answer is 5 PV. आप एरो को अगर कंसिडर करोगे ना, देखो AC का जो एरो है इट्स गोइंग फ्रॉम C to A, तो डिफरेंस इन द वॉल्यूम अगर लोगे तो 2V प्लस आएगा। हाँ एंड AB का एरो जो है फ्रॉम A to B, डिफरेंस क्या आ रहा है? P -5 हाँ तो वो हिसाब से लेना होता है एरिया अंडर द कर्व। ओके सर। अगर एरो उल्टा, मतलब इधर पॉजिटिव वर्क कर रहा है, मतलब फिजिक्स के हिसाब से देखें तो ये पॉजिटिव वर्क है हाँ और इसमें नेगेटिव होगा। अगर अरे एरो सर उल्टा वही करते ना हैं, सराउंडिंग और मैटर फिजिक्स के अंदर एरो उल्टा करके सराउंडिंग तो प्लस रेफरेंस टू सराउंडिंग होता है और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम होता है। और केमिस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम होता है। ठीक है चलो सिस्टम थैंक यू। में वर्क किया तो नेगेटिव अच्छा हो गया। हाँ 50 तक ही था। है ना सर। अच्छा ओके, क्या? सर हाँ पूछ हाँ रहा है सिस्टम ने काम किया तो नेगेटिव ना वर्क डन। दैट डिपेंड्स कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द Hello. सराउंडिंग है या बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम है। हाँ वही वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव इन केमिस्ट्री ना। हाँ जो भी सिस्टम से बाहर जाएगा दैट इज अ लॉस, जो भी सिस्टम के अंदर आएगा दैट इज वो गेन। सब एक्सपेंशन हुआ तो नेगेटिव, हाँ WEN वर्क ऑफ हाँ वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन एक्सपेंशन हाँ वेन और वहाँ मतलब पे उल्टा गैस हो ने वो जाता है। किया तो नेगेटिव, गैस ने वो किया तो नेगेटिव और गैस और पर गैस वो पे किया वर्क तो हुआ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। परफेक्ट यस ओके सर। ठीक है।